السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البین آغا، آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس وقت پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم اپوزیشن جماعتیں جو 11 جماعتیں اکٹھی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کھڑی تھی، لیکن اب وہ ایک دوسرے کی اپوزیشن بن کر رہ گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سافٹ کارنر بہت ہی زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ جو ہے نہیں دکھائی دیتا۔ انہوں نے کچھ سخت جو ہے الفاظ کا بھی استعمال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہم نے ریباٹل سنا، ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی اپنے آپ کو علیحدہ ہونے کا پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے اس کا اظہار کیا۔ مزید اگر ان سے سوالات اس پر پاکستان مسلم لیگ نون سے کیے جاتے ہیں کہ شو کاز نوٹسز کس کیپیسٹی میں جاری کیے گئے تھے اور اس کی کیا لیگل جو ہے حیثیت تھی، اور آخر کیا آپ نے واقعی جو ہے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی پی ڈی ایم موومنٹ کو، تو وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس یہی ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ وہ بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے کیس کے حوالے سے جو ہے آمدن سے زائد اثاثجات جو کہ ایسٹ بیونڈ انکم کا کیس تھا، اس پر جو ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ دھڑے بندی موجود ہے، یہ واضح دکھائی دیتا ہے کہ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے، اس وقت کون سے دھڑ موجود ہیں، اس کے اوپر بھی کیا فردر ڈیولپمنٹ آتے ہیں۔ اور اگر استعفے کی ہم بات کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے پی پی کے استعفے قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے، آپ رجوع کر لیجئے، اس کے اوپر بات کیجئے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس تمام تر معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گی، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا ڈیسیجن لے لیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوگی؟ اس کے اوپر آج بات کرنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تمام تر ایک سینٹ انتخابات کے بعد جو انہوں نے ڈیسیجن لیا اور جس کے اوپر ایک کورل سٹارٹ ہوئی، اس بات کی وجہ سے کیا واقعی پیپلز پارٹی علیحدہ ہے اس وقت اور یہ ان کا آخری فیصلہ ہے؟ اس کے اوپر کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اوور آل کچھ یہ بھی گفتگو کریں گے مذہبی جماعت کے حوالے سے۔ جو ہے وزارت داخلہ صاحب کا جو بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ پابندی لگائی جائے گی، اس کے اوپر بھی کچھ ڈیبیٹ ہم آج کے پروگرام میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو تمام تر ویورز کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک، اور رمضان مبارک میں ہم سب کو جو ہے اللہ پاک ہمت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں اور اپنے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کی معافی مانگ سکیں، اور کوئی نہ کوئی نئی ہیبٹ ضرور ہم لوگ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ ہر سال آپ سب بھی ٹارگٹ رکھیں کہ کوئی نئی ایک ایسی کوئی عادت جو کہ آپ زیادہ ذکر کرنا یا اسپرچولیٹی کی طرف جانا یا نمازوں کو قائم کرنا، کوئی نہ کوئی ایک ایسی عادت ضرور سوچیں آپ اپنی آخرت کے لیے کہ اس کو آپ ریگولر پریکٹس کر سکیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اسٹوڈیو میں رانا گلزار تاج صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ پروگرام میں جو ہے ہم اس وقت پی ڈی ایم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ بالکل علیحدہ ہو چکے ہیں اس پلیٹ فارم سے، کیا یہ آخری فیصلہ ہے یا آپ لوگ نظر ثانی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج پہلا رمضان المبارک ہے، پوری قوم کو رمضان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رمضان المبارک کی مبارکباد۔ دوسری بات، جو 3 دن سے گزشتہ ملک میں ہو رہا ہے، ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی شدید مذمت کرتی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سے گزارش کرتی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے، اور جو ان کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں، ہم علماء حضرات کو نہیں کہہ رہے، ان کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور علماء حضرات کو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ ملک کوئی نقصان جو ہے وہ قوم کا ہو رہا ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہو رہا، تو ریاست میں یہ انارکی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، تو جناب والا، پی ڈی ایم بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑی جدوجہد کی ہے پی ڈی ایم کو بنانے میں، اور چیئرمین صاحب نے ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا ہے، اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا جب پی ڈی ایم کے عہدے تقسیم کیے جا رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ دیا گیا، جبکہ پریزیڈنٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو رکھا گیا اور جنرل سیکریٹری
नून लीग को दिया गया। लेकिन सर आपको ये भी याद होगा कि जो कुछ जमातों ने ये भी कहा था, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की खुद पार्टी से ये कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लीडर हैं पीडीएम के और कोई और चला रहा है। क्या वो आप लोग की तरफ इशारा किया गया था? देखिए जब प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी नून लीग के पास हैं खाकान अब्बासी साहब हैं, तो देखिए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब तमाम अहम पोस्टें उनके पास हैं, इख्तियार उनके पास है, हमने तो उनको इकट्ठा किया। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे किसी पे इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर ये एक पंडारा बॉक्स खुलते चला जाता है। तो हमारी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि जो ये बहाली जमहूरियत का इत्तेहाद है ये कायम दायम रहे और ये अपनी शक्ल बरकरार रखे। कोताहियाँ गलतियाँ एक दूसरे से होती रहती हैं तो उनको दरगुजर भी करना चाहिए और हमें इस जदोजहद को आगे बढ़ाना चाहिए। नून लीग वाले दोस्त अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई गलती की है तो मीटिंग में शॉर्ट आउट करें, बताएं कि जी आपने गलती की है और वाकई अगर हमने गलती की और हम उसको डिफेंड ना कर पाए तो फिर हमें एक्सक्यूज़ भी करना चाहिए कि वो गलत है। सर 20 घंटे पहले की खबर है, एहसन इकबाल साहब ने जो है रिमूव कर दिया एएनपी को और पीपल्स पार्टी को पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अब मैंने आपसे फिर वही बात की कि अब एक तरफा चीज़ें जो होती हैं वो ये तो आपसे साफ जाहिर होता है कि पूरे जमहूरी सिस्टम को नून लीग हाईजैक करना चाहती है। तो फिर आप तो कह रहे टूट फूट का शिकार हो नहीं सकते। टूट फूट का शिकार तो हो चुकी है। हम नहीं चाहेंगे। हम तो आखिरी हद तक जाएंगे कि पूरा सिस्टम बचे और डिरेल नहीं होना चाहिए। जमहूरियत के लिए हमारी बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी जद्दोजहद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी मुश्किल से ये इत्तेहाद पैदा बनाया है, ठीक है, इकट्ठा किया है। ठीक है। मेजर रिटायर्ड नदीम साहब, आप क्या कहते हैं जो सीसी की मीटिंग होना थी 4 अप्रैल के बाद या 4 अप्रैल को एक्सपेक्टेड थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें उन्होंने फाइनल डिसीजन लेना था कि वेदर दे विल रिजाइन और नॉट, लेकिन जो जरदारी साहब हैं उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियर किया था एक बार नहीं बार बार कि हम इस्तीफों की तरफ नहीं जाएंगे, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होगा। फिर भी सीसी का एक ऑप्शन दिया गया था बाकी की जमातों को। सीसी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बिलावल जरदारी साहब उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने अपने मेंबर्स को कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए जो एलाय है पीडीएम से। तो यानी ये तो खत्म हो गई ऑफिशियली। और फिर वो बार बार जो पेपर फाड़ने के, नोटिस फाड़ने का जो वो है स्टांस है, उसको भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ये थोड़ा सा जो पीपल्स पार्टी के एक्शंस है ना इस वक्त तमाम पीडीएम के एक्शन के उसमें रिएक्शन में ये थोड़े से आई वॉश हैं। पीपल्स पार्टी का देखिए एक नज़रिया है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहे कहीं से भी मिले उसको ग्रैब करना, उसे ग्रैब किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, किसी के साथ भी आपने बिगाड़ना नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो, सबके साथ मिलके रहना और जो अहम पार्टीज हैं उनको आगे रखना है, उनके पीछे चलना है और जहां भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करना है। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी पीडीएम कभी नहीं छोड़ेगी और उनका कोई छोड़ने का इरादा नहीं है। उन्होंने ये इस्तीफों का भी एक खाली वो अब मैं समझता हूँ आई वॉश है और ये वापस पीडीएम में आ जाएंगे। दूसरी नहीं, लेकिन वो तो बिलावल साहब ने तो कह दिया ना कि अपने मेंबर्स को रिजाइन कर दें और दे आर नो मोर पार्ट ऑफ पीडीएम, तो ऑफिशियली तो खत्म ही हो गई है। देखिए ऑफिशियली खत्म, लेकिन अभी भी ये डिप्लोमेटिक जवाबात आ रहे हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से कि हम नहीं चाहेंगे टूट फूट का शिकार हो, खत्म हो। तो फिर ये क्या है? देखिए मैंने कहा ना कि ये सब थोड़ा सा आई वॉश है, डिप्लोमेसी है, ठीक है। और लेकिन अगर हम आई वॉश की बात करते हैं फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ बिलावल साहब चेयरमैन के, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है उनके स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि जो उनकी आला क़यादत है उनके भी स्टेटमेंट्स, आपने नासिर हुसैन शाह साहब के स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे, आपने बाकी के रिप्रेजेंटेटिव्स के भी स्टेटमेंट्स सुने होंगे। वो तो कैटेगोरिकली बार बार यही बात कर रहे हैं कि वी आर नो मोर विद पीडीएम। देखिए पाकिस्तान में किसी भी जमात में ना आला क़यादत ही एक ही क़यादत होती है, बाकी सब जो होते हैं वो दरबारी होते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत की बात है, चाहे यानी रियल डेमोक्रेसी नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? देखिए अगर रियल डेमोक्रेसी होती तो ये पार्टी इलेक्शन ये टाइम पर ये हर साल कराते, किसी ने कराया? तो आला क़यादत सिर्फ एक यही होती है, जो ओनर होते हैं उस पार्टी के, जो चेयरमैन होते हैं, जिन्होंने ओन की होती है वही होते हैं, जिसको चाहे निकालें। यही पीटीआई में भी है, यही नून लीग में है, यही पीपल्स पार्टी में है, यही एएनपी में है, यू नेम एनी पार्टी, मोस्टली 99% इनमें इसी तरह से होता है। तो ये सब डिप्लोमेसी है,
دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو شروع سے ہی یہ ہے، آج سے نہیں، ان کا یہی ہے ایجنڈا کہ دیکھیں مفاہمت، ریکنسیلیشن اینڈ ویٹ فار دی اپرچونیٹی. سندھ گورنمنٹ آلریڈی ان کے پاس ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت، یہ آج آپ لکھ لیں گے، وہ اس کو کبھی نہیں گوائیں گے. چاہے وہ کہتے رہے کہ لاسٹ آپشن جو ہے وہ ریزگنیشنز ہونا چاہیے، لاسٹ آپشن بھی ریزگنیشنز نہیں ہوگا، یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. بہرحال ابھی مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو جھکاؤ بالکل پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہے، پی ایم ایل این کی طرف ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم لانگ مارچ کرتے ہیں بغیر استعفوں کے تو بیکار ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے جو طریقہ کار ہے وہ امیچور. پھر انہوں نے یہ بھی کمپیریزن کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تو سینٹ الیکشن، وہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. تو یعنی پورا کا پورا جھکاؤ تو ان کا نون لیگ کی طرف ہے. دیکھیں بالکل نون لیگ کی طرف ہے، کیونکہ انہیں پہلے بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ جس طرح شیخ رشید صاحب ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہاتھ ہو گئے، تو مولانا صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ ہاتھ نہیں کئی دفعہ ہاتھ کیے. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کو بھی پتہ ہے، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں کہ حزب اختلاف کے اندر یہ ایک بڑی پارٹی کی صورت میں ہے، چاہے پروونشل پارٹی ہو، تو اس کو ملا کے وہ رکھنا چاہتے ہیں. اور انہیں پتہ ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم کے اوپر یہ پارٹی جو ہے یہ اپورچونٹی گریب کر کے سب کو سائڈ لائن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے. یہ جو ڈیوائیڈ پیدا ہوا ہے پی ڈی ایم میں اور آفیشلی ایک کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے خود کو علیحدہ کری، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم میں تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا، ایز اے ہوسٹ اپنا پیوٹل رول پلے کیا. وہی جماعت خود کو آفیشلی کہتی ہے کہ وی آر نو مور ود پی ڈی ایم. تو آخر پی ڈی ایم کی اب کیا حیثیت ہے؟ کیا انڈیویجول کیپیسٹی میں اپوزیشن حکومت کے اوپر پریشر کریٹ کرے گی یا پی ڈی ایم کا ایلائی دوبارہ سے اپنی پوزیشن پر آ سکتا ہے؟ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں پی ڈی ایم کے حوالے سے. پی ڈی ایم جو ایلائی بیسیکلی تھا، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے فارم کرنے میں ہیلپ کیا، کیونکہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ انڈر ون روف تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہونا چاہیے اور وہ ایک مضبوط پریشر کریٹ کر پائیں گے اس طریقے سے حکومت وقت کے اوپر. لیکن اس وقت تمام تر اینالسٹ کا یہ کہنا تھا کہ کس طریقے سے 11 مختلف منشور والی پولیٹیکل پارٹیز انڈر ون روف اکٹھا ہو سکتی ہیں، یہ تو کچھ ہی ماہ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی. شیخ رشید صاحب نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیے، وفاقی وزراء کے بھی یہی اسٹیٹمنٹس تھے. فائنلی سینٹ انتخابات کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے معاملات واضح ہو گئے. کچھ باتوں پہ عوام کا یہ بھی کنسرن ہے کہ کیا واقعی پی ڈی ایم نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑی تھی یا پھر پرسنل گینز کے لیے کھڑی تھی. اگر پرسنل گینز کے لیے نہیں کھڑی تھی تو آج کیوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دست و گریباں کھڑی ہے پی ڈی ایم؟ اس کے اوپر کیا آپ ایڈ کرنا چاہیں گے گلزار تاج صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، آپ لوگ مہنگائی کے لیے بات کریں گے، آپ لوگ عوامی مسائل کے اوپر بات کریں گے. تمام تر سپیچز کھول کر دیکھ لیجئے تو اس میں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں کی جو کہ عوام کے فائدے کی بات ہو. صرف وزیر اعظم جو ہے نااہل ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہوگا تو آپ لوگوں نے پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے ان سے سوال کرنا ہے، آپ لوگوں نے پریشر کریٹ کرنا ہے. وہ تو دیکھا ہی نہیں گیا. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں شروع میں بھول گیا تھا. اور شہباز شریف صاحب کی آج بیل ہوئی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کو آج رہائی ملی ہے. اور آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ دیکھیے ہمارا مقصد جو ہے، میں پھر آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہم کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے کہ کوئی پرابلم کریٹ ہو. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے جتنی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ خالصتاً عوام کے لیے جدوجہد کی ہے. بہت سے لوگ کی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا. دیکھیے جناب، کہنے کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس طرح کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا مقصد نیک نیتی پاکستان پیپلز پارٹی کی عوام کی آواز کو اجاگر نہیں، لیکن پھر سر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا جو ہے پی ایم ایل این کا ہوگا. تو اگر ذاتی مفاد نہیں امپورٹنٹ آپ لوگ کے لیے تو آپ لوگ بھی چھوڑ دیتے، بننے دیتے. ان کو کیا تھا؟ دیکھیے اس کی کیا حیثیت کیا تھی؟ اپوزیشن لیڈر سینٹ کی کوئی پاور تو نہیں ہے نا ایسی کہ آپ لوگ کوئی چیزوں کو انڈو کر دیں یا کوئی ڈیسیجن آ جائے وہ اس میں کوئی اپنا امپیکٹ کریٹ کرے. وہ ایک پوزیشن ہے، صرف بڑا عہدہ ہے لیکن اس کا کوئی ایگزیکٹو باڈی میں کوئی رول نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ دے دیتے ان کو. دیکھیں اگر ایسی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم تو اس چیز پہ منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں، جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا
तो 7 वोट जो खराब हुए वो किस तरफ से हुए। लेकिन आपने वो भी तो देखे होंगे ना, आपको दिखाए गए थे फुटेज के ऊपर कि किस तरीके से दोनों कैंडिडेट्स के बीच में ठप्पा लगाया गया, यानी जानबूझ के किया गया ना, इस तरह वोट्स भी तो थे। कहा ना कि किस तरफ से हुए, मैं ये एक आपका सवाल दुरुस्त बनता है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं यहाँ कुछ कहूँगा वो एक हवा देने वाली बात होगी, उसको लड़ाई को बढ़ाने वाली बात होगी। हमेशा हम ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ें, आप आवाम की बात करें। हम देखिए इदारों के खिलाफ बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी की है ना हम करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि जी हमारा बहाली जमहूरियत का एक हमने इत्तेहाद बनाया है, हर पार्टी का अपना एजेंडा है, लेकिन हम अपने एजेंडे पर चलें। जो एजेंडा हमने बहाली जमहूरियत के लिए पीडीएम बनाई है उससे हटकर हमें नहीं चलना चाहिए, हमें इदारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि देखिए हमने इस पाकिस्तान के लिए हमारी क़यादत ने कुर्बानी दी है, हमारे लाखों कारकुनों ने कुर्बानी दी है, हमने पाकिस्तान की सालमियत के लिए जद्दोजहद की है। हम ऐसा लफ्ज़ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे कि कोई ऐसी गुफ्तगू कोई ऐसी बात हो जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। जनाबे वाला अगर पीडीएम बनी है तो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इदारों को मुस्तहकम करने के लिए बनाई गई है। हम इदारों के खिलाफ जब बातें करते हैं तो ये नामुनासिब। अब क्या दोबारा से पीडीएम के प्लेटफॉर्म में आप लोग दोबारा इकट्ठा हो सकते हैं? जनाब हमारी तो पूरी कोशिश है पीडीएम बनाने का। फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं इस्तीफे कबूल हम आपके नहीं कर रहे, आप लोग बैठ के बात करें। देखिए मौलाना साहब को प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। अगर मौलाना साहब को कोई तहफ्फुज़ात हैं तो मौलाना साहब चेयरमैन साहब को कहें, पीपल्स पार्टी को कहें कि जी नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि आप आए बैठकर बात करें, आपके इस्तीफे में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चेयरमैन मौलाना साहब के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफे पहुंच चुके हैं। कमरुज़्ज़मान कारा हमारी क़यादत जो है लेकर गई है और मौलाना साहब के पास पेश किए हैं इस्तीफे के, जी ये इस्तीफे ये लीजिए आप। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं कर रहे हम एक्सेप्ट। अब देखिए ना, अब क्यों नहीं कर रहे? आप तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत तो साफ है, हमने तो पहुंचा दिए इस्तीफे, ये लीजिए जनाबे वाला इस्तीफे। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि हम इसमें डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं, ठीक जमहूरियत के लिए। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, प्रोग्राम में इस वक्त हम बात कर रहे हैं पीडीएम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हाईजैक करने की कोशिश की है पीडीएम को। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पहले तो ये है कि एक पीडीएम जो है एक इत्तेहाद था। जी इश्तियाक बेग साहब, कैन यू हियर अस? जी हाँ, आई कैन हियर यू एंड कैन यू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मिर्जा इश्तियाक बेग साहब को। यहाँ पे मेजर साहब आप क्या ऐड करना चाहेंगे कि पीडीएम के हवाले से पीपल्स पार्टी कह रही है पीएमएलएन जो है हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, पीएमएलएन कहती है कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। आखिर कौन सही कौन गलत है, इसका जो है मवाजना कैसे होगा, और क्या पीडीएम को आप दोबारा से बहाल होता देख रहे हैं? देखिए पीडीएम बिल्कुल दोबारा से बहाल होगी। पीडीएम ये कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये बेसिकली पापा डिपार्चर मूवमेंट है, ठीक है, कि पापा को बाहर भेजो, ठीक है, और जो जो कंसर्न है उनको बाहर भेजो। मैंने बताया ना कि जिस तरह ये पार्टीज़ हैं उसमें कारकुन होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन असल जो लोग होते हैं वही जो जिनके पास ओनरशिप होती है, जो चेयरमैन हैं। ये बिल्कुल कभी भी मैंने बताया कि ये कहते हैं कि जी पत्थर से भी लड़ाई ना मोल लो। पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू नज़रिया है कि वट्टा भी कभी काम आ जाता है, ठीक है। तो दे वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद द अपोजिशन एज वेल एज विद द गवर्नमेंट एंड दे वांट टू वेट। इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ से हम प्रेशर बिल्ड कर सकें गवर्नमेंट के ऊपर, सो दैट जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं या गवर्नमेंट कभी भी वो एक तो थोड़ा सा हमारे से डिस्टेंस पर रहें पापा से, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को कभी भी परवेज़ मुशर्रफ की तरह किसी एक पार्टी से लड़ाई उस नहज पर पहुंच जाए तो उन्हें फिर कुछ ऑप्शन ना अवेलेबल हो तो हम एक ऑप्शन के तौर पर उनको अवेलेबल रहें। तो ये इनका अब नज़रिया यही है कि इसी ऑप्शन के इंतज़ार में बैठे रहें। कभी ना कभी आप देखिए परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में इनको ऑप्शन मिल गया क्योंकि नून लीग के साथ उनका झगड़ा था, नून लीग को साइड लाइन हुए, इनको मौका मिल गया। तो ये पीडीएम कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही पीडीएम ख़त्म होगी। पीडीएम मैंने आपको बता दिया कि ये कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अभी भी मुफाहमत की लहर चल रही है। शहबाज शरीफ साहब का आपको पता चल चुका है, ज़मानत हो गई है, और ये आज से नहीं 3-4 महीने से ही चल रही थी मूवमेंट। शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है नवाज शरीफ से, ताकि दोनों बयानियों में से जो भी किसी को पसंद आ जाए तो वो उनको कुछ मौका मिल जाए फुट होल्ड का।
शहबाज शरीफ इज टोटली अगेंस्ट ऑफ धरना और इस तरह रेजिग्नेशंस और लॉन्ग मार्च, उनका अपना, और हैविंग गुड रिलेशंस विद एस्टैब्लिशमेंट एज वेल, तो वो कभी नहीं चाहते इस तरह की कोई चीज़ें हों। ठीक है बेग साहब, क्या सुन सकते हैं आप हमें? जी, आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली। ठीक है। यस जी। बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि पीडीएम के हवाले से पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप लोग पीडीएम को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप लोग का ये कहना है कि आप लोग की पीठ में पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा है। क्या कहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से पीडीएम जो है जमातों का इत्तेहाद है, ये सिर्फ एक नून इसमें शामिल नहीं है और नून इसमें कोई डिसीजन भी नहीं कर सकती। जो भी पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, जो भी हमारे एएनपी के साथ हुआ, वो एक मुश्तरका फैसला था जो सदर ने किया पीडीएम के मौलाना फजल रहमान से उन्होंने। और अभी भी देखें मौलाना फजल रहमान ने ये जो अभी इसका मुशावरती इजलास हुआ था जिसमें पीडीपी मौजूद नहीं थी, एएनपी भी नहीं थी, उसके अंदर ये एक मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी जो हैं वो अपने फैसलों पे नजरसानी करें। मीन्स ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही उनसे कह दिया कि आप हमसे अलग हो गए। अभी तक ये कहा जा रहा है कि आप अपने फैसलों पे नजरसानी करें। देखिए लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अपने मेंबर्स को कह दिया ना कि रिजाइन कर दीजिए पीडीएम से, और फिर उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कैटेगोरिकली कह दिया कि वी आर नो मोर विद पीडीएम। देखिए, कभी भी जमातों के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीडीएम जो था वो इतना ज्यादा पॉपुलर एक मोमेंट है कि अगर कोई जमात भी इसके अंदर से निकलती है या जाती है या इसका हिस्सा नहीं बनती तो उसको उसका नुकसान भी होगा। ये आपने देखा है कि एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पार्टियों के दरमियान डेवलप हो गई थी। मैं आपको एक मिसाल कौन सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी? लेट्स स्टार्टेड विद प्री सेनेट इलेक्शंस। उस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं हार्ड स्टेटमेंट्स का जो है एक्सचेंज था। उसके बाद सेनेट इंतखाबात में अगर ये मामला था कि पहले से पीएमएलएन का डिसाइडेड था सेनेट ऑपोजिशन लीडर, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी अगर कहती है कि हमारी जो है मेजॉरिटी ज्यादा है तो आप हमें बनने दें, क्योंकि इन्होंने तो इवेंचुअली इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने तो चेयरमैन सेनेट के लिए किया था, वो अनफॉर्चुनेटली ना हो सका। तो फिर यहाँ पे तो मफादात की जंग हो गई ना बेग साहब। नहीं, देखिए हो रहा यह है कि एक पीडीएम जो है उसका एक इंतजामी ढांचा है और सबसे पहले ये एग्री हो गया था कि सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ऑपोजिशन लीडर के लिए किन उम्मीदवारों का वो सब चीज डिसाइड हो गया था। उसके बाद ये हुआ और तमाम ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। तो अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी ने ये किया कि जब अपना आदमी ला के वो किया और फिर उन लोगों को वोट लिए कि जो हमारे पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, तो यहाँ से इसमें मैं जरूर ये एडमिट करूंगा कि थोड़ी सी बहुत एग्रेसिव थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया पीडीएम ने भी कि वो उनको इतने सख्त लफ्ज़ों का लेटर नहीं लिखना चाहिए था बल्कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। मगर आल्सो पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी बहुत जल्दी दिखाई कि हम अलग हो रहे हैं उससे। तो इसका नुकसान आप देखेंगे कि होगा। और ऑलरेडी वो जो एक फोर्स थी, मतलब क्योंकि जितनी अगर 7 जमातें होती हैं अपने एक दूसरे के साथ यूनिटी होती है। और मैंने जब पीपल्स पार्टी और उसके अंदर नून के अंदर देखा कि जब शहीद मोहतरमा की बरसी हुई है तो खास तौर पे मरियम नवाज जो थी वो आई उसको अटेंड करने के लिए और उन्होंने अपनी वन ऑफ द बेस्ट स्पीच जो थी वो की और वो नजर आ रहा था कि वो दिल से वो स्पीच कर रही हैं। तो एक तमाम अच्छी चीजें थी। मगर मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि पीपीपी और एएनपी अपने फैसलों पर नजरसानी करें, तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह सेंस विल प्रिवेल और चीजें जो है अच्छी होंगी। ठीक है बेग साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन एसेट बियॉन्ड इनकम केस? शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई 50-50 हजार के 2 मचल के देने पर। देखिए, वो उसका कोई ताल्लुक किसी और चीज से नहीं है। इस वक्त नैब क्या कर रही है कि हर एक के ऊपर केसेस गलत बना रही है और विक्टिमाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है। और जब उनको रखते हैं, जेलों में रखते हैं, उनको बंद रखते हैं, उनको कैद में रखते हैं और बाद में वो कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो कोर्ट्स जो है वो आजाद हैं, वो कुछ अरसे बाद उनको रिलीफ दे देते हैं। कई जमानतें हुई हैं, आई मीन नॉट ओनली शहबाज शरीफ साहब। तो मेरे ख्याल से अगर उनकी जमानत जो है उसको इस चीज से लिंक किया जाए कि जनाब कोई गिव एंड टेक हुआ है, तो डेट इज नॉट करेक्ट। और
मेरे ख्याल से कोई केस वेस थे ही नहीं, और हुकूमत जो है इतने दिनों में कोई इसमें प्रोग्रेस भी नहीं दिखा सकी, कोई सबूत भी पेश नहीं कर सकी। अलवीना, एक चीज मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि जितने भी केसेस ये हैं विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, और अदालतों को भी ये मालूम है, ठीक है नैब को एक कानून के तहत हक है किसी को अरेस्ट करने का, 3 months को तो रखने का। देखिए हमजा को कितने अरसे आपने रखा, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी गॉट, नथिंग, यू नो। देखिए ना, अगर आप इसलिए किसी को कैद में रख रहे हैं कि उसके खिलाफ सबूत हैं और वो सबूत आप पेश कर रहे हैं, और अगर आप सालों लगा दें, अभी कुछ अर्से पहले एक और केस बेल हुई है जिसको 3 साल आपने रखा, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती आप अगर नैब इस तरह की चीजें कर रही है। और यही वजह है कि नैब को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और जैसे आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी जब नैब का नाम आता है तो जो रिएक्शन उनका वो यही होता है कि नैब जो है विक्टिमाइजेशन कर रहा है और उससे काम नहीं कर रहा। तो अच्छा है, एक अच्छी चीज है कि उनकी जमानत हो गई है, और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स पे वो बिलीव करते हैं, और अपना ड्यू रोल जो है वो उसके अंदर वो पेश अपना इंशाल्लाह अदा करेंगे। ठीक है बेग साहब, आपका टेक इस पर, जो इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं और एक मजहबी जमात और बैंड आउटफिट TLP उसके ऊपर पाबंदी लगाने का जो फैसला किया गया है वजारत दाखिला की तरफ से, क्या समझते हैं आप दोबारा के क्या रीब्रांड करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को दोबारा आ सकती है, और क्या कुछ मोराल्स का जो है जानना भी ज़रूरी है, कुछ हदें भी हमें जानने की ज़रूरत है। बेशक अगर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हो, हम बात दुरुस्त कर रहे हैं, हुकूमत से कुछ मनवाना चाहते हो, लेकिन उसका भी कोई तरीका होना चाहिए। इट्स हाई टाइम हमें सीख लेना चाहिए। क्या अगर खुदा न खास्ता हमारे मजहबी मामला जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं उसमें अगर कहीं गुस्ताखी की जाती है तो क्या हम अपने ही लोगों को सज़ा देंगे? क्या ये समझदाराना फैसला है? देखिए अलवीना, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत सही कहा कि देखिए सबसे बड़ी गलती ये हुई है, मैं हुकूमत को ब्लेम करूंगा आज जो भी हो रहा है, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, लाखों का लॉस भी हो रहा है, पूरा आधा मुल्क जो है पैरालाइज हो गया है। आपने एक ऐसा मुआहदा किया था उस पार्टी के साथ जो कोई भी समझदार हुकूमत नहीं कर सकती थी। आपने उनको एक डेडलाइन तो दी थी ना कि हम जो है फ्रांस के सफीर को वापस भेज देंगे, अपना सफीर हम वापस बुला लेंगे, हम उनके और इन रियल मीन्स बेग साहब, बीइंग अ बिजनेसमैन यू आल्सो नो कि हम कितने कमजोर हैं। मतलब बेशक उनकी बात दुरुस्त है कि मतलब निकाल के फेंके उनको, लेकिन पहले हमारी हैसियत भी तो उतनी होनी चाहिए ना। पहले हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हम बहुत सारे मामलात हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, डिप्लोमेसी है, मल्टीपल इसमें इश्यूज हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने गलत किया कि उनको ऐसी रियलिस्टिक बात नहीं की, क्योंकि फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो आपको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इस वक्त परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, और एयरफोर्स और नेवी के हमारे आपको पता है सबमरीन्स और प्लान ये वो। मगर देखिए ना, क्या उस वक्त हुकूमत को उनके साथ ये मुआहदा करना चाहिए था कि जी ठीक है इस डेट तक हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, जबकि उनको मालूम था कि हम नहीं हो सकता ये। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन हुकूमत को उस वक्त बेग साहब क्या करना चाहिए था कि मामले को वो जो है बेहतर करने के लिए आखिर क्या कर सकते थे वो? देखिए मगर गलत वायदे, देखिए हमेशा मैं हुकूमत को जो ये कहता हूँ कि ये यू टर्न जो लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में यू टर्न ले लेते हैं। हुकूमत को सिर्फ मालूम था, वो सिर्फ टाइम गेन करना चाहते थे, उन्होंने कर लिया। ठीक है बेग साहब, यहीं से कंटिन्यू करूंगी मैं आपसे, यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना गुलजार ताज साहब से, वो उस पर क्या कहेंगे? मामलात खराब हो जाना और इंटरनेशनल या डिप्लोमेसी को अगर हम देखते हैं, उनको मामलात को हैंडल अगर हम ना करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, खास तौर पर जहां पर हमारी मजहबी जो है इमोशंस इंटरकनेक्टेड हो। क्या कहेंगे आप? देखिए हम ना तो शुरू से ही ऐसे मामलात पहले भी होते रहे हैं, और ये हुकूमत वक्त का काम था कि वो इस तरह की बातें जो तहरीर करना और फिर उनके सामने झुकना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये हुकूमत की नाकामी है। इसमें जो हमारे उलमा हजरात हैं उनको भी समझाना चाहिए, और उनको, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, रोल उलमा का ज़्यादा इसमें होना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि इंटरनेशनल सूरत हाल क्या है, हमारे मुल्क की पोजीशन
पोजीशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उनको भी मुतालबा करते वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो जब ये सारा मेन मसला होता है हुकूमत और उलमा हजरात का कि जब वो आपस में बैठें तो मुल्क की मईशत पर भी तो तवज्जो दें, मुल्क की सूरत हाल पर भी तो तवज्जो दें कि मौलाना साहब आपकी बात हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर आज हम इख्तिदार में, कल अल्लाह पाक आपको इख्तिदार दे देता है तो आप क्या करेंगे? तो मुल्क तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हर चीज़ों को सोचना पड़ता है। हमारी हुकूमत वक्त तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि यू ट्रेंड देखो मसाइल का हल नहीं होता। ये काबिल मजम्मत है जो कुछ हो रहा है। आज अगर हम उलमाओं पे इल्ज़ाम लगाएं ये भी गलत है, क्योंकि उलमा और हुकूमत के बीच में हो सकता है कोई साजिशी लोग हों जो ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, सरकारी लोगों पे हमले किए जा रहे हैं और FIR उलमाओं की कट रही हैं। ये भी मजम्मत है, काबिल मजम्मत है, ये गलत है। ये चीज़ें इनको ठंडा करना चाहिए। हम आपके तवज्जुह से पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि हुकूमत वक्त से भी और उलमा हजरात से भी कि सब्र के दामन को हाथ से ना जाने दें। आप थोड़ा सा एहतियात से काम लें, गुफ्तगू आप डायलॉग करें, और डायलॉग जब आप करेंगे तो इसमें सॉल्यूशन निकलेगा, मसले का हल निकलेगा। ठीक है, आपने ये एग्रीमेंट किया, ये एग्रीमेंट आपने किस बचकाना सोच के तहत किया, उसका जवाब उन उलमा को आप कायल करें कि ये काबिल मजम्मत है कि उन्होंने फ्रांस में जो कुछ हुआ दुनिया ने इस पर मजम्मत की है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारा खत्म नबूवत है, उस पर हमारा ईमान है, दीन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब चीज़ें बातों के जरिए हल होती हैं, लड़ाई से नहीं। आज हम अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी ही इमारतों को जला रहे हैं, तो ये काबिल मजम्मत है। हम अपने ही पुलिस ऑफिसर्स को मार रहे हैं, उनको आग लगाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी क्या मैसेज दे रहे हैं? हम अपनी ही फोर्सेस को मार रहे हैं, हम मैसेज गलत जा रहा है। तो हम तो खुदारा उलमा हजरात से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप सब्र का दामन न छोड़ें, आप ये मुजाहरे ख़त्म करें, आप डायलॉग पर आएँ, आप इस मेज पर बैठें और सियासी लोगों के साथ भी उनको भी शामिल करें। हम पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को भी शामिल कर लीजिए, अपना रोल प्ले करना लाजमी करना चाहिए। इसमें मेजर साहब आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जब हम ब्लास्फेमी की बात करते हैं, ये किसी भी मुसलमान के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इवन मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ज़रा सा भी जिसमें ईमान का जुज़ होगा तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम सबको जो है बिल्कुल ही अपने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़ा होना है। हम लोग जिस भी कैपेसिटी में रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मैं टेलीविजन के ऊपर कुछ व्यूअर्स के सामने प्ले कर सकती हूँ अपना रोल, तो मुझे करना है। अगर आप अपने आसपास के लोगों में, सराउंडिंग्स में कर सकते हैं अपने दीन के लिए, तो आप वो वहां पर कर सकते हैं। लेकिन जब हम एज अ होल कंट्री अगर हम बात करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट की इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कहीं पे मामलात हम डायलॉग से हल करते हैं, कहीं पे हम लोग एग्रेसिव एक्शन से हल करते हैं। तो ये जो फ्रांस वाला मामला था, आपको लगता है कि ये मिस हैंडल हुआ है हुकूमत से? बिल्कुल अलमीना, देखिए फ्रांस, पहले बात तो ब्लास्फेमी का जो भी चीज हुई है वो फ्रांस के अंदर हुई है, और उसमें वहाँ पे भी कई लोगों को कत्ल किया गया, मुसलमान जो वहाँ पे अफ्रीका के रहने वाले हैं, मोरक्को के, तुनीस और अल्जीरिया वगैरह के। बेग साहब जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर। बेग साहब यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ टेक लेना चाहूंगी मेजर साहब का। जी, आप यहाँ से कंटिन्यू। एक तो हमें ये डिफरेंशिएट करना होगा कि आलिम कौन है। मसला ये सारा यहीं से स्टार्ट होता है कि जहाँ पे गैर आलिम बन के बैठ जाता है, उसे ना तो इल्म होता है कि क्या चीज़ सही है और किस चीज़ के ऊपर उसको क्या प्रोटेस्ट करना है या किस चीज़ को आगे लेके चलना है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो कानून है या फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है वो हर मुसलमान के लिए जो है वो बहुत ही तकलीफ दे हुआ है, और उस पर हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। उसके लिए हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन ये कौन सा तरीका है, आप मुझे बताइए कि वो आलिम जिनको ये आलिम कह रहे हैं, मैं तो उनको आलिम मानने को तैयार ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं, चंद पार्टियां हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, उनमें कोई भी आलिम नहीं। पहली बात थी कि जो आलिम का क्राइटेरिया अगर उनकी पार्टियों का भी ले लें तो उसमें भी वो क्राइटेरिया पर नहीं उतरते। ये तो रातों रात शोहरत मिलने वाले आलिम हैं जो ऊपर उठ के आ गए किसी तरह से, जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। शायद इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस भी नहीं मालूम हो, शरिया लॉ भी नहीं मालूम हो, किसी चीज़ का ना फ़िक़े का पता है ना शरीयत का पता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो आलिम ही नहीं है, मैं उनको आलिम ही नहीं मानता। और मेरा क्या, आप क्राइटेरिया पर रख लें, आप वो आलिम ही नहीं है। वो उठकर आप शाम को देखते हैं कि
پورا شہر اور پورا ملک بند کر دیا. ملک کی ایک رٹ ہوتی ہے. ملک خالی تحریک انصاف کا نام نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ چلا رہی ہے, ٹھیک ہے. ملک کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ پولیس والوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ سلوک کر رہے ہیں, یہ پولیس آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کرائمز کو پریونٹ کرتی ہے. اسی طرح سے وہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو سارے جن کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا, تمام روڈوں کو اور اس طرح موٹر ویز کو اور عام انسانوں کو جو تکلیف دی ہے اس کا احساس نہیں ہے. اسلام نے کہیں پہ شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز بالکل سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس میں کوئی بھی عالم نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا کہ تحریک, انہوں نے بہت اچھا ایکشن لیا ہے. اور اس طرح کی جو یہ حرکتیں کرنے والی کوئی بھی جماعت, لیکن نیا نام اگر برانڈ کر کے آ جائیں پھر کیا پتہ لگتا ہے. لیکن جب نیا نام سے کوئی چیز آتی ہے بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پھر میں آپ ورڈ یوز کروں گا کہ سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد الفاظ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد بیانیہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اورینٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یو ول سی انشاءاللہ کہ اگر ری برانڈ بھی کر کے اگر آ گئے تو اب کیسے ان کا سافٹ ویئر انشاءاللہ اتنا اچھی طرح سے اپڈیٹ ہوگا کہ یہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. مرزا اشتاق بیگ صاحب, آپ بات کر رہے تھے ہم سے کہ مس ہینڈل کیا ہے معاملہ. جی بیگ صاحب, کین یو ہیئر اس؟ وہ امریکہ میں, یس آئی کین ہیئر یو. یہ ہمارے فرانس میں آئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ موراکو اور الجیریا کے رہنے والے کچھ لوگوں نے ان لوگوں کا جنہوں نے بلاسفمی کی تھی ان کو قتل وتل بھی کر دیا تھا. دیکھیے, ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا کہ کلیکٹیو وے کے اندر OIC جو مسلمان کنٹریز کی ایک جماعت ہے وہاں پہ اس مسئلے کو لے کے جاتے. ہم نے سب سے زیادہ ان سے جو یہ اس طرح کے وعدے کیے کہ ہاں جی ہم یہ کر لیں گے, جو کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت FATF جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی میٹنگ جو ہو رہی ہیں فرانس کے اندر ہو رہی ہیں, ہم آلریڈی اس کے اندر انوالو ہیں. دوسرا, اب ہمیں یہ بھی پرووک ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں جی کہ ہم آپ کی جماعت پابندی لگا دیں گے, کیونکہ حکومت پابندی نہیں لگا سکتی. اگر حکومت کو پابندی لگانی ہوتی تو سب سے پہلے وہ ابھی تک نون کے اوپر پابندی لگا چکی ہوتی. یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام ہے کہ کسی جماعت پہ ویلڈ ریزن کے اوپر پابندی لگائے. آج میرے خیال سے ہم یہ چیزیں کہہ کے اور زیادہ پرووک کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو وزارت داخلہ کا سٹیٹمنٹ ہے یہ مزید اور پرووک کرے گا. ایگزیکٹلی جی, آپ جب ان لوگوں کو یہ دیوار سے لگائیں گے, جیسے کبھی کبھی کسی کو دیوار سے آپ نہیں لگائیں, نیگوشیشنز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں, پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں اور سینس پریویل کرے گی. اس کے بعد ان کو بتلائیے کہ وہ بھی نہیں چاہیں گے, وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے میں اور آپ ہیں. جب ان کو بتلایا جائے گا کہ اس چیز کے کیا نقصانات ہیں, پہلے تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سائن کر لیے, ان کو خوش کر دیا کہ ہاں جی یہ چیزیں ہم کر دیں گے, اور اب ہم نے ایک دم سے ڈنڈا ان کے اوپر اٹھا لیا. میں نے ابھی بھائی نے میجر صاحب نے جو یہ کہا کہ جی یہ لوگ وہ بھی نہیں ہے, میرے خیال سے ہمیں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ کون آدمی ہے جو علماء ہے یا نہیں ہے. لیکن بیگ صاحب the point why he highlighted this is کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حقوق العباد کی کلیئرلی اسلام میں ایک لائن شو کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں, انلیس وہ انسان آپ کو نہ معاف کرے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرتا. تو ہم کیسے کسی اپنے آپ کو اپیرنٹلی ریلیجس بول کر اور پائس بول کر ہم ایمبولینسز جلا دیں, ہم اپنے پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیں, ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں؟ کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ دس از واٹ ہی وانٹس ٹو ہائی لائٹ. معیشت کا بھی ہم اپنا تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, آؤسلیوٹ بھی ہو رہے ہیں. ہمارے دشمن جو ہے وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ ضرور ہم سے اس وقت ہنس رہے ہوں گے. تو مجھے امید ہے اس کے اندر دوسری جماعتوں کو بھی انوالو کیا جائے, بلایا جائے, بیٹھا جائے, مگر یہ کہہ دینا کہ ہم تم پہ پابندی لگا دیں گے یا ہم ان کو کہہ دیں کہ نہیں جی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے کمپلیٹلی مس ہینڈل کیا اس کیس کو, جب وہ فرانس کے معاملے میں, پھر جماعت کے معاملے میں پارٹی پہ, جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کافی ان کے اس وقت فالوورز ہیں پورے پاکستان میں. آپ اس طرح پابندی آپ نہیں لگا سکتے. یہ جو ہے اس کا ایک لانگ پروسیس ہے جس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, حکومت نہیں کر سکتی. شیخ رشید صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی یہ جماعت اب ایگزسٹ نہیں کرتی اور نہیں کرے گی, اس سے حالات اور خراب ہو جائیں گے ہمارے. تو میرے خیال سے 5 ڈیتھ ہو گئی ہیں. ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت گرم ہیں اس وقت. میرے خیال سے اس کے اندر کسی طریقے سے انوالو کر کے بٹھا کے ان کے لیڈر سے بات چیت کی جائے, اور خدارہ اس ایک آدمی کو جس کو ہم نے اریسٹ کر لیا, جس کی وجہ سے یہ تمام چیز ہو رہی ہے, اس کو رہا کیا جائے یا ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے, یا اس کے گھر میں اس کو آپ ہاؤس اریسٹ کر دیں. مگر آپ نے جب اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں تو لوگوں کو موقع مل رہا ہے
और इससे हमारे दुश्मन जो हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं, वो भी इन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कराची का क्या हाल हुआ, पूरे मुल्क का क्या हाल हुआ, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इससे तो हमारी मईशत जो है और ज्यादा जो है वो मुतासिर होगी। और सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि इस वक्त दूसरे कंट्रीज के जितने भी यहाँ पे सिफारत खाने हैं वो सब हमको ये देख रहे हैं कि किस तरह का इस हुकूमत ने एक रिलीजियस लोगों के साथ ये वादा कर लिया था, किन बेसिस पे किया था कि जी हम उसके सफीर को वापस भेज देंगे, अपने सफीर को बुला लेंगे, फ्रांस के जो प्रोडक्ट हैं हमने वो हम बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो आई मीन ऑन फर्स्ट हैंड करना ही नहीं चाहिए था ये तमाम चीजें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो चीज को और ज्यादा मतलब प्रोवोक नहीं करेगी, चीजों को समझाएगी और किसी तरीके से मसले को हल करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जी राना साहब, अगर हम बात करते हैं आप लोग के उन स्टेटमेंट्स के हवाले से जो कि आप लोग ये कह रहे थे कि कौन सा एक घर भी नहीं दिया वज़ीर आज़म साहब ने, एक नौकरी नहीं दी, एक दरख्त नहीं लगाया, दरख्त भी लग रहे हैं, उनकी भी जो है अपडेट्स आ रही हैं। हालांकि कुछ जगह पे उनके रेफरेंसेस भी मौजूद है, अदालत भी सवाल कर रही है कहीं ना कहीं पे। दूसरी जानिब अगर हम नौकरियों की बात करते हैं तो उस पर रिबटल उनका वो आता है, कर तो रहे हैं, स्टील मिल्स को सही कर रहे हैं, PIA को सही कर रहे हैं, तबाह आप लोगों ने किया है। तीसरा, वो हाउसिंग स्कीम के बाद आपने फर्स्ट फेज में देखा कि 1500 घरों को जो है हैंड ओवर कर दिया गया। सेकंड फेज में फिर आपने उसमें डेवलपमेंट देखी। अब फाइनली वज़ीर आज़म साहब ने सरगोदा में कम लागत हाउसिंग स्कीम का भी संगे बुनियाद रख दिया है। तो ये तो घर तो दे रहे हैं, अब आप लोग क्या ये बात करें 1500 से क्या होता है? अब नया स्टेटमेंट आ गया आप लोगों का। नहीं, माशाल्लाह हम मुबारकबाद पेश करते हैं उनको कि उन्होंने घर भी दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं। माशाल्लाह आपने निशानदेही की। हम आपके मैंने क्या निशानदेही की है? तो आपको ये आप तो ऐसे बोल रहे हैं राना साहब जैसे कि आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं। एक मैं आपको 2 महीने पुरानी खबर बता रही हूँ, ये मैंने कोई अभी निशानदेही नहीं की, ये सरगोदा की बात ये अपडेटेड है सर। जी तो इस पे बता दीजिए आप। जो कम लागत हाउसिंग स्कीम है, कितने का घर दे रहे हैं कम लागत? सर आप मुझे सिंपल बता दीजिए, एक बिल्डर अगर हम प्राइवेट अगर स्लम एरिया के जो हाउसेज हैं इस वक्त स्लम एरिया में कितने कैपेसिटी में, और वो लीगल भी नहीं है, वो किस कैपेसिटी में, चले हम कराची की बात कर लेते हैं, किस कैपेसिटी में किस तरह दे रहे हैं। इवन जो बिल्डर्स खुद को कह रहे हैं कि हम लोग सोशो पॉलिटिकल मामलात नहीं बल्कि हम लोग बिल्कुल ही वेलफेयर के मामलात देख रहे हैं इस वक्त, वो भी कह रहे हैं कि 21 लाख रुपए का फ्लैट, सस्ता तरीन 21 लाख, और यहाँ पे कितने कितने कीमतों में आप मिल रहे हैं, आप वो कंपैरिजन कर लें। चलें अब आप मुझे इस पे आप क्या, इस पे भी कोई नेगेटिव कमेंट करना है तो आप कर लीजिए, खुल के करें ना, इस तरह ना करें, खुल के कर लें राना साहब, खुल के तनकीद करें। मैं तो मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि माशाल्लाह घर भी मिल गए, नौकरियां भी मिल गई। खुल के तनकीद करें ना, खुल के तनकीद करें। अरे जनाब मैं तो आपके तवज्जुह से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। नहीं मेरे तवज्जुह से कैसे आप, वो 2 महीने पहले आपको नहीं पता था? बेरोजगारी खात्मा हो चुका है, बेरोजगारी का, और माशाल्लाह जितने बेघर थे सबको घर मिल गए हैं। हम तो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हम तो शुरू दिन से। चलिए मेरे ख्याल से राना साहब इसी तरह सार्कास्टिकली बात करेंगे, आप जेन्युइनली मुझे इस पे जवाब दें। अगर आपने इसको भी तनकीद करनी है, खुल के तनकीद करें, अगर आप फेवर करना चाह रहे हैं तो वो भी बता दीजिए, इस पे बता दें। फर्स्ट फेज में भी देखा हमने, गवर्नमेंट जो भी है उसकी नीयत नेक है, उसकी लीडरशिप नेक है, और अभी तक करप्शन फ्री है, कोई उसके ऊपर ऐसी एलिगेशन नहीं है। आप पॉलिसीज़ देखें कि कच्ची आबादी के लिए वो मॉडल आ रहे हैं जो टर्की ने या दूसरे कंट्रीज़ ने किया कि भाई आधे एरिया के ऊपर तुम यहाँ पर बिल्डर को दे दें ज़मीन कि वो अपनी हाई राइज बनाएं, और आधे एरिया में उन्हीं कच्ची आबादी वाले लोगों को घर बना के दे दो। इसी तरह से ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग जो स्कीम इन्होंने निकाली हुई है, इसमें यही है कि 10,000 रुपये महीना मिनिमम जो है वो ले रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इतना एक आदमी जो है वो किराया दे देता है यहाँ पर, और लेकिन कुछ अरसे के बाद 3-4 साल के बाद वो एक घर का मालिक बन जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें देखिए हल्के हल्के इसमें खुद। लेकिन ऑपोजिशन का बार बार यही कि 1500 घरों से अब क्या होगा, अब नया उनका स्टेटमेंट ये है, ये होता है वो फर्स्ट फेज की बात है, अब नेक्स्ट पीस के ऊपर चीज़ों में ना अट्रैक्शन क्रिएट होती है इन्वेस्टर्स के लिए, फिर इन्वेस्टर्स के अंदर पोर इन होता है, ठीक है। जैसे उसमें देखिए बिल्डिंग मटेरियल सारा उसके अंदर जा रहा है अभी ना, तो ये एक ब्लैक होल की तरह अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, सारी चीज़ों को, बिजनेस। तो आप कह रहे हैं कि टाइम जरूर लगेगा, फाइनल कमेंट बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ये जो जा रही है इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत नेक नियत है, और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जिस लाइन पे ये सोच रही हैं कि गरीब लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ये पुश करेंगे, उसके बाद मोमेंटम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से वो
मिल के ठीक आगे है। बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मेजर नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अगर हम अप्रिसिएशन की बात करते हैं, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, जो भी हुकूमत कोई प्रोजेक्ट करती है और अच्छा प्रोजेक्ट करती है तो उस पर हमें अप्रिसिएशन देना हम सबको ज़रूरी है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर फोकस किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कुछ प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से हर सूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स करने की सख्त ज़रूरत है, जिस तरीके से ताकि वो अपने सूबे में जो है कुछ और बेहतर काम कर सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।